Hello everyone, welcome to Legal Update. Today's topic for discussion is Doctrine of Escheat cannot defeat a valid will. Why in news? Recently, the Supreme Court in state of Rajasthan versus Ajit Singh and others held that the state cannot invoke the doctrine of escheat under Section 29 of the Hindu Succession Act once a Hindu male has executed a valid will and probate has been granted. Background of the case: a prominent estate holder from Rajasthan passed away in 1987. He had executed a will dated 30th October 1985 bequeathing all properties to a charitable trust which is Khetri Trust. Despite the will, the state of Rajasthan took possession of the estate under the Rajasthan Escheats Act 1956, treating it as a hairless property. The will was challenged before the Delhi High Court. In 2023, a division bench upheld its validity and granted probate, relying on attesting witnesses. The state of Rajasthan appealed before the Supreme Court, claiming locus under the doctrine of escheat. What were the court observations? The Supreme Court bench, comprising of Justice B.V. Nagaratna and Justice S.C. Sharma, states that the state government has no locus standi to challenge a will once probate has been granted. Doctrine of escheat applies only in cases of intestate succession. When a Hindu dies with a will, it becomes a case of testamentary succession and only heirs can contest probate. The government remains a stranger to probate proceedings unless there is a complete failure of heirs under Section 29. Only legal heirs, not the state, can seek revocation of probate under Section 263 of the Indian Succession Act 1925. Provisions involved are: first, Section 8 of the Hindu Succession Act 1956, which states for the rules of succession for intestate Hindu males. Second, Section 29 of the Hindu Succession Act 1956, which stands for Doctrine of Escheat and states that property devolves on government only if no heirs exist. Third, Section 263 of the Indian Succession Act 1925, which states that revocation of probate possible only at the instance of persons who would have inherited in the case the will was invalid. It's the time for practice question. Doctrine of escheat under Section 29 of the Hindu Succession Act applies when: Option A, a Hindu executes a valid will. Option B, a Hindu dies intestate with no heirs. Option C, government challenges probate. And Option D, probate is revoked. Pin down your answers in the comment section below. लीगल अपडेट प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है एस्कीट का सिद्धांत वैध वसीयत को पराजित नहीं कर सकता। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में राजस्थान राज्य बनाम अजीत सिंह एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक बार जब किसी हिंदू पुरुष ने वैध वसीयतनामा बना लिया हो और प्रोबेट प्रदान कर दिया गया हो तो राज्य हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 29 के तहत राजगद्दी के सिद्धांत का आह्वान नहीं कर सकता। आइए अब जानते हैं मामले की पृष्ठभूमि को। राजस्थान के एक प्रमुख संपत्ति धारक का 1987 में निधन हो गया था। उन्होंने 30 अक्टूबर 1985 को एक वसीयतनामा जारी किया था जिसमें सभी संपत्तियां एक धर्मार्थ ट्रस्ट खेतड़ी ट्रस्ट को दे दी गई थी। वसीयत के बावजूद राजस्थान राज्य ने राजस्थान एस्कीट्स अधिनियम 1956 के तहत संपत्ति को उत्तराधिकारहीन संपत्ति मानते हुए उस पर कब्जा कर लिया। इस वसीयत को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। 2023 में खंडपीठ ने इसकी वैधता को बरकरार रखा और सत्यापित गवाहों के आधार पर प्रोबेट प्रदान किया। राजस्थान राज्य ने एस्कीट के सिद्धांत के तहत अधिकार क्षेत्र का दावा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। आइए अब जानते हैं न्यायालय की टिप्पणियों को। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, एक बार प्रोबेट स्वीकृत हो जाने के बाद राज्य सरकार को वसीयत को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। एस्कीट का सिद्धांत केवल बिना वसीयत के उत्तराधिकार के मामलों में लागू होता है। जब कोई हिंदू बिना वसीयत और बिना उत्तराधिकारियों के मर जाता है। जब कोई हिंदू वसीयत के साथ मर जाता है तो यह वसीयती उत्तराधिकार का मामला बन जाता है और केवल उत्तराधिकारी ही प्रोबेट को चुनौती दे सकता है। जब तक धारा 29 के तहत उत्तराधिकारियों की पूर्ण विफलता न हो तब तक सरकार प्रोबेट कार्यवाही के लिए अजनबी बनी रहती है। केवल कानूनी उत्तराधिकारी राज्य नहीं कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 263 के तहत प्रोबेट को रद्द करने की मांग कर सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं शामिल प्रावधानों पर। धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बिना वसीयत वाले हिंदू पुरुषों
श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के उत्तराधिकारी सगोत्र सजातीय के लिए उत्तराधिकार के नियम, धारा 29 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एस्कीट का सिद्धांत, संपत्ति सरकार को तभी हस्तांतरित होती है जब कोई उत्तराधिकारी न हो। धारा 263 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 प्रोबेट का निरसन केवल उन व्यक्तियों के कहने पर संभव है जिन्हें वसीयत अमान्य होने की स्थिति में उत्तराधिकार प्राप्त होता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 29 के तहत एस्कीट का सिद्धांत कब लागू होता है? विकल्प ए एक हिंदू वैध वसीयत निष्पादित करता है, विकल्प बी एक हिंदू बिना किसी उत्तराधिकारी के मर जाता है, विकल्प सी सरकार प्रोबेट को चुनौती देती है, विकल्प डी प्रोबेट रद्द कर दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।